A very good morning to all students. In previous class we had done some equations of motion. Three equations of motion we have studied. V equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. Three equations. You must learn them and practice them. In previous class we had derived those equations from graphical method by some graphs, velocity time graphs. We had derived these equations. In this class we will use these equations. We will apply these equations to solve problems. Okay, so problems may be of any kind related to these physical quantities: acceleration, velocity, final velocity, time, distance. So you may be asked anything. For example, acceleration is common in all these equations, right? First, let me write these equations once again. V is equal to u plus at. This was the first equation, right? Acceleration है इसमें. S is equal to ut plus half at square, that is second equation, and 2as is equal to v square minus u square. By using these equations we can find out any value, any problem, we can solve any problem. So you can see acceleration is very important because acceleration is common in all these equations. Acceleration सब में common है. Okay. Distance, to find distance we can use this formula or this formula. Okay, so you may be asked anything in any problem, right? So in simplest case, simplest problem, you may be asked that a car is moving with some velocity, initial velocity, acceleration is applied, after some time what will be the final velocity, or what will be the velocity after some time. You can apply easily this formula. Okay, you may be asked how much distance an object covers, right, in some time with acceleration. Distance के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, right? ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद, a car applies brake, and ब्रेक के बाद जो है कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ब्रेक लगाने के बाद, तो वो भी आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, इन दोनों में से यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले का, राइट? सो आप देख रहे हैं डिस्टेंस के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जरूर होनी चाहिए. जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या नहीं. इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी तो ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो इस फॉर्मूले से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे भी आप कर सकते हैं. ठीक है, और एक्सेलरेशन हर इक्वेशन में प्रेजेंट है, राइट? चेंज इन वेलोसिटी आप फर्स्ट फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं. डिस्टेंस के लिए आप सेकेंड और थर्ड कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, टाइम की वैल्यू भी पूछी जा सकती है. ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूले में से कोई चूज करके वो फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल. दिस इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 109. यू कैन सी, आई विल ऑल्सो रीड दिस. सो द क्वेश्चन सेज a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 10 meter per second square for 2 minutes. Okay, so this is given to you that bus is starting from rest, means that initial velocity is equal to 0. This is given to you. Acceleration is also given to you, which is 10 meter per second square. Okay, and time is also given, which is 2 minutes. तो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है ये कि जीरो से जीरो स्पीड थी, एक्सेलरेशन इतना अप्लाई किया गया, 2 मिनट्स के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, राइट? अगर आप किसी व्हीकल में इतना एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 2 मिनट्स व्हाट विल बी द स्पीड कितनी एक्वायर होगी, दैट इज आस्क्ड इन दिस numerical. Okay, these are the three formulas we have to use, right? So in this, as it is clear, final velocity आपको find out करना है, तो आप use the first equation. V is equal to u is 0, acceleration is 10 and time is 2 minutes. So since acceleration is in SI units, so time भी आपको SI unit में करना पड़ेगा. So it will be equal to 120 seconds. Okay, meter per second, seconds में ही आपको आंसर लिखना होगा. तो 10 multiplied by 120. Okay, so it will be
1200 meter per second. It is in meters. Okay, so 1200 meter per second is the final velocity acquired. मीन्स इतना एक्सेलरेशन अप्लाई करने के बाद 2 मिनट में इतनी स्पीड जो है हो जाएगी उस व्हीकल की. सिंपल. ऑलराइट. किसी भी न्यूमेरिकल में जो यूनिट्स है वो ऐसा यूनिट होनी चाहिए. राइट. जनरली ऐसा यूनिट होनी चाहिए. और अगर ऐसा यूनिट आप नहीं ले रहे हैं तो सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर ये किलोमीटर में है तो यहाँ भी आपको किलोमीटर में आंसर निकालना होगा. डिस्टेंस भी किलोमीटर में लेना होगा. टाइम अगर आवर में ले रहे हैं तो हर जगह जो है टाइम आवर्स में ही लेना होगा. तो जनरली आप ऐसा ही लीजिए मीटर पर सेकंड. इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड. ओके. इसी में सेकंड पॉइंट पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस मींस एस. आफ्टर 2 मिनट्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा. तो डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे आप. ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है u इज इक्वल टू 0. तो सेकंड वाला फॉर्मूला ही आप यूज कर लीजिए. ut u इज 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाई t 0 प्लस हाफ at स्क्वायर. हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 10 और टाइम भी दिया हुआ है कितने 2 मिनट्स. राइट. 120 सेकेंड्स. तो 120 स्क्वायर. राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 14400. तो इट विल बी 72,000 meters मीन्स 72 किलोमीटर्स. क्योंकि लास्ट आंसर है तो आपको मीटर बड़ा लग रहा है तो किलोमीटर में भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 72 किलोमीटर्स. हाँ, कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर आपको यूनिट जो है सेम ही रखनी है. ऐसा नहीं कहीं मीटर ले लिया कहीं किलोमीटर ले लिया. फाइनल में आप चेंज कर सकते हैं जिसमें भी आप निकालना चाहें. ओके. सो इसका आंसर विल बी 72 किलोमीटर्स. ओके. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. सेकंड न्यूमेरिकल जो मैं अभी बोल रहा हूँ आप खुद लिखेंगे, उसके बाद इस यहाँ पर देखेंगे. पेज नंबर 110. सेकंड प्रॉब्लम. अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. दैट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी. ओके. 90 किलोमीटर पर आवर. ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ट्रेन चल रही है किसी वेलोसिटी से, ब्रेक्स अप्लाई किए गए. ठीक है. ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब एक्सेलरेशन हुआ है. ठीक है. एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 दी हुई है. हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितने डिस्टेंस के बाद ट्रेन रुकेगी. ऐसा तो है नहीं ब्रेक लगाते ही ट्रेन रुक जाएगी. ब्रेक लगेगी, कुछ टाइम बाद ट्रेन रुकेगी. तो डिस्टेंस कितना कवर होगा ब्रेक लगाने के बाद वो इसमें पूछा गया है. तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके. तो वैल्यूज जो गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की. 90 किलोमीटर पर आवर. एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड. अब एक्सेलरेशन आपको पता है वेक्टर है तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है. और आपने पहले पढ़ा है कि इफ एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर स्पीड जो है कम हो या फिर ब्रेक अप्लाई हो तो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होता है मतलब नेगेटिव होता है. तो एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब आपको गिवन है. डिस्टेंस निकालना है आपको कितना कवर है. ईजी है, बहुत ईजी है. लेकिन उस सॉल्व करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए, इधर किलोमीटर पर आवर है, इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो आपको सेम करना होगा. तो ऐसा यूनिट ही ले लीजिए. 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था. वी मल्टीप्लाई बाई 5/18. सो 90 को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. राइट. So 25 मीटर पर सेकेंड जो है इनिशियल वेलोसिटी. टू फाइंड डिस्टेंस मींस s. फॉर s वी कैन यूज सेकेंड और थर्ड एनी फॉर्मूला. तो यू कैन चूज कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ आपको तो, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, थर्ड में टाइम नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है. ओके. सो ये सब चीज़ें गिवन है. फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है हमको. कैसे? क्योंकि जब भी कोई चीज़ रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि कोई भी चीज़ व्हीकल जब रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. राइट.
सो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो थर्ड फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो डिस्टेंस विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसी को मैंने एडजस्ट किया है। v 0 माइनस यू स्क्वायर मीन्स माइनस 25 स्क्वायर इट विल बी माइनस 625, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन माइनस 0.5 है तो इट विल बी इक्वल टू 625 मीटर्स। देखते रहोगे तो नहीं कर पाओगे, आपको पहले खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी रफ नोटबुक में और उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आंसर इज 625 मीटर मीन्स जब ट्रेन के ब्रेक लगने के बाद ट्रेन 625 मीटर्स और आगे जाएगी, उसके बाद ट्रेन रुकेगी। तो हमने थर्ड फॉर्मूले का यूज करके निकाला क्योंकि इसमें क्या है सब कुछ गिवन था। ओके, आप ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम नहीं था, टाइम गिवन नहीं था आपको, तो टाइम आपको फर्स्ट से निकालना पड़ता फिर सेकंड में पुट करना पड़ता। उससे इजी आपके पास जो क्वांटिटीज हैं उसका यूज करके थर्ड फॉर्मूले से हमने इसको निकाला, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसमें है ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन मीन्स थोड़ा झुका हुआ प्लेन है, वहां से ट्रॉली ऐसे जा रही है। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप खुद करिए इस न्यूमेरिकल को, नहीं आता फिर देखिए। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है और गिवन है आपको व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। टाइम दिया है 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, कल में क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मीन्स स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्टिंग में जब कार रेस्ट में थी, ट्रॉली रेस्ट पर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होने के बाद जब मोशन स्टार्ट करेगी तो इनिशियल 0 ही होगी। ओके, क्योंकि ट्रॉली पहले रेस्ट पर थी उसके बाद इसने मूव करना शुरू किया। हाँ, अगर ये ऑलरेडी मूवमेंट में होती, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती, तब हम वैल्यूज इसकी लिखते, लेकिन यहाँ पर रेस्ट स्टार्ट से कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है आप। ओके, सब ये तो बहुत सिंपल है, सबसे बेसिक फॉर्मूला आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर आपको इनिशियल दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, u प्लस ए टी यूज करेंगे। ओके, u0 एक्सेलरेशन 2 ओके मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए ये आंसर आएगा आपका 6 और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में है। ओके, तो सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि मैं SI में आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड, तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर सिर्फ एक है ना, तो एक ही क्वांटिटी है, तो पूरे न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, इधर सेकंड चल रहा है तो सेकंड चल रहा है। तो 6 सेंटीमीटर जो है पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। Numerical 4, you can read it from book or listen to me. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Uniform acceleration. What distance will it cover in 10 seconds after the start? आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा। इनिशियल आफ्टर द स्टार्ट पूछा है, आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, और पूछा है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कितना कवर होगा, राइट। सो डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड। थिंक अबाउट दिस, पॉज द वीडियो, थिंक और खुद सॉल्व करो आप, उसके बाद देखो। सेकेंड और थर्ड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। टाइम अगर दी हो तो ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन 4 है,
ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मोशन एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं। सो टी स्क्वायर है 10 सेकेंड, सब सेकेंड में, टाइम सेकेंड में हर जाएगा, डिस्टेंस मीटर में, ठीक है। ये हो जाएगा 200 मीटर्स, राइट। तो इस आंसर में भी 200 मीटर्स। खुद से सोल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, खुद से सोल्व करो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, तो वो ग्रेविटेशनल जो है फोर्स आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपने क्लासेस में पढ़ा था एक्सेलरेशन वाले टॉपिक पे, वो चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं या फिर नीचे डालते हैं फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन कौन सा वर्क करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एक स्टोन है या कोई भी चीज़ है, चौक है, इसको अपवर्ड जो है थ्रो किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज़ को हम नीचे थ्रो करेंगे, ओके, नीचे थ्रो करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप नीचे आएगी अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उस केस में 0 होगी। लेकिन जब आप ऊपर थ्रो करेंगे तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे है। ऊपर थ्रो करने के टाइम आपको कुछ वेलोसिटी देनी होगी, इसको फोर्स लगाना होगा, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तब कौन सी वेलोसिटी 0 होगी? जब स्टोन ऊपर जाएगा, तो आपको पता है ऊपर जाने के बाद वापस तो आएगा, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट जो है, जहाँ तक ये जो चौक है वो पहुँचेगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। मीन्स मैंने इसको फेंका ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से, और जो टॉप पॉइंट तक ये जो पहुँचा, वहाँ से नीचे आया, मीन्स वहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? 0। वेलोसिटी 0 हो गई तभी ये नीचे आया। अगर वेलोसिटी कुछ वैल्यू बची होती तो वो और ऊपर जाता, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी फाइनल हो गई 0, इसलिए वो फिर नीचे आएगा, ठीक है। व्हेन वी थ्रो अपवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी हैज सम वैल्यू, फाइनल इज 0। लेकिन जब हम नीचे फेंकेंगे तो इनिशियल विल बी 0 बट फाइनल विल हैव सम वैल्यू। ओके, इट्स नॉट दिस टर्म, नॉट दिस पॉइंट। सो इस केस में स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, स्टोन को अपवर्ड्स जो है फेंका गया। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कैसे? डाउनवर्ड्स हो मतलब फ्री फॉल हो, फ्री फॉल के केस में u इज इक्वल टू 0, v नॉट इक्वल टू 0। नोट कर सकते हैं इसको आप। फ्री फॉल में इनिशियल 0 होती है, कोई वेलोसिटी नहीं देनी होती। फाइनल जब वो नीचे पहुंचती है, मतलब फ्लोर से टकराने से पहले पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि तब उसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो फ्री फॉल में फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अपवर्ड्स के केस में जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ देनी पड़ेगी, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा वेलोसिटी, लेकिन फाइनल अपर मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो स्टोन नीचे वापस आएगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है, आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड थ्रो करने में इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन जब नीचे आएगा तो उस टाइम पे 0 वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। तो इस न्यूमेरिकल में बोला गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन, इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम काउंट करेंगे, जो कि आप 10 ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है तो हम 9.8 ही ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें भी आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन वाली क्लास में हमने किया था, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो। थिंक अबाउट दिस, पॉज द वीडियो और सोचो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ठीक है। मोशन एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, जब हमने थ्रो किया ऊपर तो मोशन किधर है? ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन हमारे इस केस में मोशन हो रहा है ऊपर, तो मोशन एक्सेलरेशन से अपोजिट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे से जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको खींच रही है अपनी तरफ। तो नीचे से खींच रहा है कुछ, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी,
ठीक है, इस केस में तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस और इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आपको गिवन है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको 10 ही गिवन है तो आपको 10 ही लेनी पड़ेगी, नहीं गिवन है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, -9.8 और -10। ओके, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना हाइट जो है, हाइट मीन्स इस केस में हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो आप s की जगह पर h भी ले सकते हैं, h। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम एक स्पेशल सिंबल देते हैं जिसको हम कहते हैं g। ओके, सो ये सब आपको गिवन है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस। और मैंने अभी आपको बताया था कि अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जब स्टोन एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जहां तक ये जा सकता है, वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो वापस नीचे आएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस वाले सेकंड और थर्ड में से कौन सा यूज करेंगे, टाइम तो दिया नहीं हुआ तो थर्ड वाला यूज करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, a को हम लिख रहे हैं g, तो 2g, s को लिख रहे हैं h, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। राइट, आपको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, और g नेगेटिव है इधर, फाइनल वेलोसिटी 0, 0 माइनस u स्क्वायर 25 माइनस 25, 2g मीन्स -20, so -5/4, तो इट विल बी इक्वल टू 1.25 meters, right? 5/4 is 1.25, so that is the height attained by the stone। means अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो कितनी हाइट अटेन करेगी, 1.25 मीटर तक ही हाइट पहुंचेगी उसकी। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, खुद से सोल्व करते रहिए आप, देखने से नहीं आएगा। सेकंड है हाउ मच टाइम विल इट मेक, मतलब कितने टाइम बाद यहाँ पर पहुंचेगा। अब सेकंड में आपको टाइम निकालना है, तो इतना आपने कर लिया होगा। टाइम कैसे निकालेंगे आप, जब आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, है ना, और एक्सेलरेशन भी गिवन हो, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट at हो गया gt, ये हो गया, तो टाइम निकालना है, टाइम विल बी v माइनस यू अपॉन g, फाइनल वेलोसिटी इज 0, माइनस यू माइनस 5, g माइनस 10, 1/2 सेकेंड्स, मतलब 0.5 सेकेंड्स। सच अ स्मॉल इंटरवल 0.5 सेकेंड्स तक ही ये मोशन होगा, 0.5 सेकेंड्स के बाद ये स्टोन वापस नीचे आ जाएगा अगर हम उसको 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं ऊपर। तो टाइम 0.5 सेकेंड, डिस्टेंस आपने पहले निकाल लिया, हाइट। सो ये काफ़ी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप न्यूमेरिकल को ध्यान से नहीं रीड करोगे, आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन में ही जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिए पहले, क्या क्या चीज़ें गिवन है और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। ऐसा ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। स्टोन को थ्रो करना, कार मूव कर रही है, ये सब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और पूछा क्या है क्वेश्चन में, और जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करके आपको फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस करेंगे इजीली, आराम से कर सकते हैं। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन है पेज नंबर 112, चैप्टर 8 मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। अ मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये मैं आपको सोल्व नहीं करूँगा, आपको खुद से करना है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। A motorboat starting from rest accelerates in straight line at a constant rate of 3 meter per second square। ठीक है, accelerate at rate of मतलब acceleration given है 3, time 8 seconds। How far does the boat travel? How far means distance find out करना है आपको, तो distance आप सेकंड और थर्ड फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम गिवन है, ठीक है, और फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, ऊपर से बॉल को फेंक दिया बिना कोई फोर्स लगाए। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको ये तो पहले भी अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड ही होता है अंडर ग्रेविटी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, राइट, 0 इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी आपको
फाइंड आउट करनी है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम भी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है आपको देखिए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि फ्री फॉल है, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव या पॉजिटिव होगा ये आपको खुद सोचना है, क्योंकि बॉल भी नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे है तो पॉजिटिव होगा। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है पहले, ठीक है। तो जनरली फाइनल वेलोसिटी आप फर्स्ट फॉर्मूले से निकालते हो, लेकिन इधर आपको टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एक और रिलेशन है, थर्ड वाला, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें आपको डिस्टेंस होना चाहिए और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, हाइट कितने से ड्रॉप किया, 10 मीटर। तो फॉर इस थर्ड फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे इसको, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी विल बी, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड v स्क्वायर विल बी 2gh डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सब मीटर पर सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेकंड में पूछा है टाइम, टाइम पूछ लिया है, तो टाइम आप किसी भी फर्स्ट से या सेकंड से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट पे देख लीजिए, पहले v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, तो v जो वैल्यू आई थी वो आपको v पे पुट करनी है, u प्लस gt आपको पता है, तो t विल बी v माइनस u अपॉन g, ये वैल्यूज पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन ऑल्सो यूज सेकेंड, टाइम निकालने के लिए आप सेकेंड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा है तो फर्स्ट ही यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको u भी गिवन है, a भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो सेकेंड फॉर्मूले से भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम के लिए हम फर्स्ट और सेकेंड कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड में तो टाइम है नहीं, तो फर्स्ट और सेकेंड में ही यूज़ करके हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आज आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7, ओके।